हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12th के फिजिक्स में फिर से चल रहे हैं। और फिजिक्स में दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इसको दोस्तों हम लोग दो तरीके से ऐड करते हैं। सबसे पहले इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इसका कैसे हम लोग रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। So let us consider we have taken three capacitors, like first capacitors, here second capacitors, and here third capacitors. Okay, this capacitors having capacitance C1, and this capacitors having capacitance C2, this capacitors having capacitance C3. Okay, so these are known as parallel plate capacitors. Okay, so if these three capacitors joining such as the first plate of capacitor C1 to give a charge Q, then in this section this plate charged positively and just opposite sides plate have negatively charged, but other surface of this plate connected to this, so the positive charge of this side surface transferred to the capacitor C2, and again this part positively charged and this is negatively charged, and again the positive charge of this side transferred to another, and this is positive charge, and again this side is negatively charged, and if we join this portion to the earth, then the positive charge of this side goes to the earth. Okay, this combination or this system of combination is called series combination of capacitors. Okay, listen again. Series combination, it means first part given charge plus Q. So this is plus Q charge. So this is minus Q charge. Again this is plus Q charge. Again this is minus Q charge. This is plus Q charge. This is minus Q charge. So in the series combination, it is consequently clear that in the series combination, all the capacitance having same charge. Listen again. In the series combination, all the capacitors having the same charge होते हैं. But what is known by the series combination? In series combination, the first plate is taken to the charge, and other plate, if this is negatively charged, then this is positively charged, connected to each other. So C1 connect to C2 like this, and C2 connect to C3 like this. It means this is positive, this is negative. If this is also positive and negative, then these are called series combination. Again, these two are also connected into series combination. Okay, but in what is mean another combination is called parallel combination. That part I have to
I will be read further. So now let's come here to understand the series combination. In series combination, how can we find the resultant capacitance of this system? How can we find the resultant capacitance of this series combination? So at first, understand clearly what is mean by series combination. Okay, सीरीज कम्बिनेशन इट मीन्स कि जैसे ही आप इसको चार्ज दोगे तो ये तो पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन ठीक इतना ही ये इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इस पे आएगा, लेकिन इसके अदर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है। और इसका पॉजिटिव चार्ज जैसे ही दूसरे प्लेट से आप कनेक्ट करोगे तो इसका ये आउटर सरफेस का पॉजिटिव चला जाता है इसके पास। अब ये पॉजिटिव होगा तो ठीक इतना ही नेगेटिव, अब इसके ऊपरी सरफेस पे ठीक इतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन ये भी कनेक्ट है तो इसका पॉजिटिव इसके पास चला गया और अब ये नेगेटिव हो गया, फिर इसके बाहरी सरफेस पे पॉजिटिव आएगा, लेकिन अर्थ आप कर दोगे तो बाहर का जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रलाइज हो जाता है और इस तरह से ये पूरा का पूरा सिस्टम वर्क करने लगता है। ओके, बट इन दिस कॉम्बिनेशन लिसन केयरफुली and remember it that in series combination all the capacitors having same charge, all the capacitors having same charge but differ in potential. Let us consider this plate having the potential V1, this plate having the potential V2, this plate having the potential V3. Okay, this is in the potential V1, this is in the potential V2, this is in potential V3. So listen and learn it clearly that in series combination every capacitance having same equal charges but differ in potential, whereas in parallel combination, this is called parallel combination. In parallel combination each positive plates, ये positive और ये negative, each positive place connected to a common point and every negative place also connected to a common point. So this combination is called parallel combination. But what is the resultant capacitance of the parallel plate capacitors? It will be read again. So let's come here for the series combination. Okay, so in series combination for the first capacitors, let's consider you know a formula V is equal to, you know C is equal to Q by V, C is equal to Q by V, so V is equal to Q by C. Okay, but for first capacitors V1 is equal to Q by C1, because Q are equal for each combinations, each capacitor, so Q have not 1, 2, 3 etc. because Q are equal for each capacitor. So V1 is equal to Q by C1 and again V2 is equal to Q by C2 and V3 is equal to Q by C3. So V1, V2, V3. Now again, if the total potential between let's consider A, B, C, D. So total potential between A and D, it will be given by V is equal to V1 plus V2 plus V3. This is the total potential between A and D. Potential between A and B is V1. Potential between B and C is V2. Potential between C and D is V3. Then the potential between A and D, it is given by V1 plus V2 plus V3. Now, if you substituted the all values here, Q by C1 and Q by C2 and Q by C3, okay?
Now listen, if here V and Q take as common to this side, then 1 by C1, 1 by C2 and 1 by C3. Okay. So V is equal to V1 plus V2 plus V3 and so on. V by Q is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. Okay. So अब here you know that Q is resultant charge between A and D, and V is a resultant potential between V, A and D. So V by Q, it is also given the resultant capacitance between A and D. Okay, resultant capacitance जो परिणामी धारिता है, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस परिणामी धारिता, तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस जो होगा C इज इक्वल टू Q बाई V. सो इट गिव्स V by Q is equal to 1 by C, where C is resultant capacitance. Resultant capacitance between A and D. Understand? Then this equation gives 1 by C is equal to 1 by C1, 1 by C2 and 1 by C3. This is the formula for resultant capacitance in series combination. It means if C1, C2, C3 are three capacitors combined in series, then the resultant capacitance of this combination is given by this formula, where C is the resultant capacitance between A and D. Okay. This is formula for three capacitors, but for more than three capacitors, here note. For more than three capacitors, so 1 by C is equal to 1 by C1, 1 by C2, 1 by C3 dash dash dash, जितने भी कॉम्बिनेशन ऐसे हो, इन सभी के लिए यूज आप कर सकते हो. ठीक है. तो ऐसे n कैपेसिटर्स अगर आप ऐड कर दोगे तो 1 by C is equal to सिग्मा 1 by Cn, where n is equal to 1 to n. इसे आप शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हो. 1 by n की वैल्यू 1 भरोगे, C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 and so on. This is the general formula for the resultant capacitance of the series capacitors combination. Okay. So again, students, this is the proof of combination for series capacitors. But here arise some notes, some important notes here. नोट नंबर 2, नोट 1 आप उसको करोगे. नोट 2 में फॉर टू कैपेसिटर्स, नो, जस्ट स्टे हियर फॉर अनदर नोट्स. हियर इज अनदर इंपॉर्टेंट नोट्स. दोस्तों जरा ध्यान से देखिएगा. You know 1 by C is equal to 1 by C1, 1 by C2, 1 by C3 and so on. इससे एक बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला. देखिए ध्यान से. इसका मतलब यह हुआ कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो जो रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आएगा वो सबसे छोटे कैपेसिटेंस से भी छोटा आएगा, क्योंकि ये इनवर्सली ऐड किया गया है. सबसे छोटा जो कैपेसिटेंस होगा ना, उससे भी आंसर छोटा आएगा. जैसे सपोज करो कि ये 2 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड का ये C1 है और इसको C2 मान लो,
तो इसका रिजल्टेंट आंसर 1/c इक्वल टू 1/2 1/6। तो आंसर आप देखोगे कभी भी ना तो 2 माइक्रोफैरड से भी छोटा आंसर आएगा सबसे, ये दोनों सीरीज में, लेकिन सीरीज में जो सबसे छोटा कैपेसिटेंस सब कैपेसिटर्स होता है उसका जो रिजल्टेंट होगा उससे भी आंसर कम आएगा। जरा चेक करो, तो ये एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 1 4/6 आएगा, तो 2/3 आ जाएगा, और 2/3 का मतलब C की वैल्यू 3/2, तो 3/2 मतलब 1.5 माइक्रोफैरड। देख रहे हो ना, जो आंसर रिजल्टेंट आ रहा है वो 1 इससे भी छोटा आया ना। तो यही कहा गया कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स will also be comes less than from the less capacitance, यानी कि जो सबसे छोटा होगा स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस उससे भी छोटा आंसर आएगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद नोट थर्ड में चलते हैं। नोट थर्ड में फॉर 2 कैपेसिटर्स, फॉर 2 कैपेसिटर्स, 2 कैपेसिटर्स के कंडीशन में आएंगे तो क्या फार्मूला 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, या इसको एलसीएम लेकर के आप ऐड करेंगे तो c1 प्लस c2 अपॉन c1 c2 एंड c इज इक्वल टू c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2। दिस इज द डायरेक्ट फार्मूला फॉर एनी 2 कैपेसिटर्स इन सीरीज, यानी कि सीरीज अगर कॉम्बिनेशन है तो डायरेक्ट C की वैल्यू अगर निकालना हो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, इससे आप डायरेक्ट निकाल लेना। अगर किन्हीं 2 का आंसर चाहिए तो बस C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 डायरेक्ट निकाला जा सकता है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए रिजल्टेंट है दोस्तों। तो ये अभी तक मैंने जो बताया ये सीरीज कॉम्बिनेशन का पूरा डिस्क्रिप्शन था, उसका प्रूफ था, उसका फार्मूला था, उसका फार्मूले को यूज भी आप कर सकते हो। अभी छोटा सा एग्जाम्पल भी बता दिए हैं और क्वेश्चन आप लगा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन पहचानना पड़ता कभी कभी सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन पहचानने में दिक्कत होती है, ऐसे कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो लेट्स कम इनटू द नेक्स्ट सेकंड, इट मींस पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखो दोस्तों पैरेलल कॉम्बिनेशन का मीनिंग मैंने बता दिया। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मीनिंग बिल्कुल इजी, कि अब आप इसको एक काम करो कि ऐसे कैपेसिटर्स को लेना है, लेकिन शर्त इसकी ये है कि इसके जो सारे पॉजिटिव प्लेट्स हैं वो सारे एक पॉइंट से अटैच्ड होंगे। जैसे मान लेते हैं कि हम यहां से तीनों को ऐड करेंगे और इसका जो दूसरा प्लेट है वो भी सब किसी एक ही पॉइंट से आपको अटैच करना है, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे Q चार्ज इस पॉइंट से देते हैं तो ये चार्ज, सुनिएगा ध्यान से, अगर यहाँ पे चार्ज आप Q देते हो तो यहाँ 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बटेगा ये। और सपोज करें कि इसका जो कैपेसिटेंस है वो C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसका कैपेसिटेंस C3 है। ये तो जब लेंगे आप कैपेसिटर्स को तो अलग अलग कैपेसिटेंस उसका होगा ना, उसकी धारिता अलग अलग, इसको हिंदी में संधारित्र बोलते हैं। कैपेसिटर्स को, कैपेसिटर्स मीन संधारित्र होता है, ठीक है। और कैपेसिटेंस जो है वो, कैपेसिटेंस को धारिता बोलते हैं। तो C1 C2 C3 आर द कैपेसिटेंस ऑफ दीज थ्री कैपेसिटर्स, एंड व्हेन if you join to a common point of every first plate and every second plate also join another point B, then this combination is called parallel combination. But what will be happen in parallel combination? ये अर्थ है, यहाँ पे अर्थ किया गया है। अब देखो अगर आप चार्ज Q देते हो, जैसे ही चार्ज Q दोगे तो इसमें क्या होता है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसे सपोज करो कि इसको हम Q1 मिल गया चार्ज, इसी तरह से इसको चार्ज Q2 मिल गया और इसको चार्ज Q3 मिल गया।
तो अब क्या होगा कि ये प्लेट सारे के सारे पॉजिटिव होंगे और उतना ही ये नेगेटिव होगा। उसी तरह से ये भी उतना पॉजिटिव होगा, उतना ही ये नेगेटिव होगा। उसी तरह से ये पॉजिटिव होगा, उतना ही ये नेगेटिव होगा। लेकिन इसके बाहर का जो पॉजिटिव चार्ज है फिर चार्ज सब अर्थ में चला जाएगा। तो इस तरह से अब इस पे चार्ज Q1 मान लिया जाए, इस पे Q2, इस पे Q3, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब कि बंट गया है तीनों में। ये कॉम्बिनेशन, ये कैपेसिटेंस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन पैरेलल में एक सबसे मजेदार बात कि ये दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल होगा ना, वो कॉमन होता है। यानी कि जो पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल इसका होगा, वही पोटेंशियल इसका होगा। आप ध्यान रखिएगा कि सीरीज में सबका चार्ज कॉमन होता है, इक्वल होता है, और जबकि पैरेलल में सबका पोटेंशियल कॉमन या इक्वल होता है। ये अच्छे से दिमाग में रखिएगा कि सीरीज और पैरेलल का सबसे मेन मुद्दा है कि आप उसको क्लियर रखोगे कि पैरेलल में सभी सेम पोटेंशियल पे होंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जबकि पैरेलल में सबका चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पोटेंशियल डिफर करेगा। समझ गए? तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये तो मैंने पूरा समझाया इसकी थ्योरी कैसे वर्क करता है। लेकिन अब रिजल्टेंट फाइंड करना है कि हाउ कैन यू फाइंड द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ दीज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चलिए सबसे पहले चार्ज Q अगर हम लोग बात करें चार्ज Q1 की, तो चार्ज Q1 की अगर आप बात करते हो तो चार्ज Q1 में Q इक्वल टू CV होता है, तो C1 भी लिखोगे क्योंकि भी सब में कॉमन है, इसलिए भी पे 1 2 नहीं लगेगा। सिमिलरली Q2 इक्वल टू C2V एंड Q3 इक्वल टू C3। ओके, Q1 इक्वल टू C1V, Q2 इक्वल टू C2V, Q3 इक्वल टू C3। Okay, and again the resultant charge Q is given by Q1 plus Q2 plus Q। अब यहाँ पे चार्ज मतलब तो रिजल्टेंट शो कर लो, तो क्या आपने चार्ज क्यू है तो वही 3 पार्ट में बटा है। पहले सिंगल सिंगल निकालिए कि आप सबका अटैच कर दो और सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। तो Q1 इक्वल टू C1V, C2V एंड दिस इज C। Q इज इक्वल टू यहाँ V C1 प्लस C2 प्लस C3 हो गया। अब यहाँ पे V कॉमन, Q बाई V इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। बट अब फिर देखो Q यहाँ पे क्या है, रिजल्टेंट, पूरे सिस्टम का रिजल्टेंट चार्ज है, V पूरे सिस्टम का रिजल्टेंट पोटेंशियल है। तो ये पूरे सिस्टम का रिजल्टेंट कैपेसिटेंस हुआ, धारिता हुई सबकी, पूरा सबका धारिता हुआ ना। सुन लो, जैसे देखो Q इज इक्वल टू C इज इक्वल टू Q बाई V होता है ना। तो अगर ये रिजल्टेंट चार्ज है, रिजल्टेंट पोटेंशियल, तो C जो है रिजल्टेंट पोटेंशियल होगा। तो यहाँ लिखोगे हियर Q बाई V इज इक्वल टू C, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। ये रिजल्टेंट कैपेसिटेंस हो गया। तो अब यह फार्मूला बन गया C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस, ये इसका रिजल्टेंट फार्मूला। यानी कि जब पैरेलल में जोड़ोगे आप कैपेसिटर्स को, पैरेलल में जोड़ोगे तो उसके लिए रिजल्टेंट निकालने के लिए आप C1 C2 C3 डायरेक्ट ऐड कर दो तो रिजल्टेंट निकल जाएगा। तो पैरेलल में जोड़ना है तो C1 प्लस C2 प्लस C3 करना पड़ेगा, सीरीज में जोड़ना है तो 1 बाई करके आपको ऐड करना पड़ेगा। तो
तो फार्मूले को आप अंतर कैसे करोगे ये समझ लेना, ठीक है ना। अब वही मोर देन 3 अगर रहेगा तो आप प्लस ऐसे ही करते चलो जाओ, C4 डैश जितना भी सबको ऐड कर दो, आप सबको ऐड कर दो तो ये रिजल्टेंट मिल जाएगा पूरा, क्लियर, मोर देन 2 के केस में। और बाकी इसमें हाँ एक जो नोट, वही नोट जो ऊपर बताए थे हम सीरीज में, ये नोट बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ फिर है। इसमें क्या होता है कि आप जब भी रिजल्टेंट पैरेलल का रिजल्टेंट निकालोगे तो इसका आंसर जो आएगा सबसे बड़े कैपेसिटेंस से भी बड़ा है। सो इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस will becomes greater than the greater value of capacitance, greater than the greater value of capacitance, यानी कि जो सबसे बड़ा कैपेसिटेंस होगा उससे भी बड़ा आंसर है। ये पैरेलल का रिजल्ट है। तो इस तरह से मैंने आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन दोनों सेक्शन आपको मैंने बताया है, और इन दोनों सेक्शन का प्रूफ करके आप अपने नोटबुक में डालोगे और उसका जो कुछ एग्जाम्पल्स है उसको भी आप टच करोगे। और दोस्तों ये यहाँ तक मैंने जो बताया है ये चैप्टर सेकंड का लास्ट टॉपिक था, सेकंड चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कैपेसिटर्स पे डिपेंड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।